never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. आवाज बढ़ा भाई इसकी थोड़ी सी। आपके बेटे आपके भाई आवाज कर दे भाई तेज इसकी, पीछे तक जाने दे। आपके बेटे आपके भाई देवेंद्र कादियान जी आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में पहुंचे हैं। अभी मंदिर में गए हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये जो युवा साथी सामने इधर उधर खड़े उनसे मैं निवेदन करता हूं सभी एक बार मंच के सामने आ जाएं, सभी मंच के सामने आ जाएं। सभी साथी जो पीछे गली में खड़े हैं सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी साथी एक बार मंच के सामने आ जाएं। भाई आपके बेटे आपके भाई देवेंद्र कादियान इस गन्नौर के आन शान और एक सच्चे समाज सेवी जो जनता के दिलों में बसते हैं, जो 36 बिरादरी के दिलों में बसते हैं। और अब की बार इस जनता ने दिल खोलकर अपने बेटे अपने भाई को जो प्यार दिया है, जो समर्थन दिया है,
जिस भी गांव में जाते हैं दिल खोलकर छत्तीस बिरादरी अपने बेटे का, अपने भाई का समर्थन करती है। अब की बार ये भीड़, ये लोगों का प्यार, ये युवाओं का जोश, ये मातृशक्ति का आशीर्वाद, ये हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद ये सिद्ध करता है कि अब की बार इस गन्नौर के अंदर जीत सच्चाई की होगी और ये भेदभाव की राजनीति खत्म होगी और इस गन्नौर के अंदर अब की बार बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। आपके भाई देवेंद्र कादियान जी को आपने जो समर्थन, जो प्यार, जो आशीर्वाद दिया, काबिले तारीफ है। ये छत्तीस बिरादरी ने अपने बेटे, अपने भाई को जोश, ऊर्जा देने का काम किया। जो ताकत आपने अपने भाई को दी है, यही ताकत, यही ऊर्जा आपका बेटा, आपका भाई आपकी सेवा में लगाएगा, आपके गांव के विकास में लगाएगा, आपके बच्चों को, भविष्य को सुरक्षित करने में लगाएगा और इस गन्नौर हल्के के विकास में ये ऊर्जा लगाएगा। आप सभी ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, युवाओं ने अपने बेटे, अपने भाई को जो प्यार, आशीर्वाद दिया, एक बार फिर मैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपने अपने बेटे को, अपने भाई को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत दी है। चला दो भैया रेडी थोड़ी देर। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजा के दिखा दो आप अपने भाई बेटे को कितना प्यार करते हैं। दिखा दो कि सच में सबके दिल में देवेंद्र कादियान बसता है। दिखा दो एक बार तालियां बजा के कि सच में आपके दिल में देवेंद्र कादियान है और सबने ठान लिया कि अब की बार इस गन्नौर में जीत सच्चाई की होनी है। आप सबके बीच में आपके भाई, आपके बेटे आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए और सबने दिल खोलकर अपने भाई बेटे को प्यार, आशीर्वाद, फूलों की मालाओं के साथ स्वागत किया। आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हमारे बीच में कुछ हमारे सम्मानित मौजूद हैं जो पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे बीच में धर्मवीर मोर जी, नरेश जी और साथ में हरिकिशन जी, बलबीर जी, रोहतास मोर जी, जगबीर जी, चंद्र जी, राज सिंह जी, रामपाल जी और प्रियव्रत सरपंच जी और प्रदीप मोर एक्स सरपंच जी, ये सारे सम्मानित हमारे बीच में मौजूद हैं जो अपने बेटे को पगड़ी के साथ सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियों में कमी ना होने दे। ये तालियां, तालियों की गूंज, आपका यही जोश आपके बेटे, आपके भाई को ताकत देता है, इनको ऊर्जा देने का काम करता है। हमारे बीच में जो भी सम्मानित हमारी ये गांव की सरदारी, हमारे ये पिता तुल्य बुजुर्ग जो पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान कर रहे हैं, सभी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सभी ने जो प्यार, मान सम्मान दिया और पगड़ी के साथ जो मान सम्मान दिया, ये पगड़ी हमारी हरियाणा की पवित्र भूमि में सबसे बड़ा मान सम्मान मानी जाती है और गांव की सरदारी ने अब की बार ये जिम्मेवारी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पे रखी है और ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और आपकी सेवा में गन्नौर हल्के के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। थोड़ी और आवाज बढ़ सकती है भाई, पीछे भी है। ये मंच के सामने आ जाएं सभी साथी, उधर खड़े। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सभी से, हमारे सम्मानित, हमारे कुछ युवा साथी पीछे खड़े हैं, ये इधर एक बार लेफ्ट साइड में, मंच के लेफ्ट साइड में जगह है, इधर आके खड़े हो जाए। सभी मंच के सामने आ जाएं भाई। जो बाइकों पे खड़े हमारे युवा साथी आ जाओ भाई, एक बार हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है मेरा, आ जाए, सभी आ जाए भाई युवा साथी। ये जो रोड पे खड़े युवा साथी, ये भी नजदीक आ जाओ भाई, नजदीक आ जाओ सारे। हाथ जोड़कर निवेदन है, जो रोड पे खड़े हैं ना साथी, ये गाड़ियों के पास खड़े, आ जाओ थोड़े से नजदीक आ जाओ। चलो अभी हमारे बीच में हमारे कुछ सम्मानित कृष्ण मोर जी और कालू मोर जी, कृष्ण मोर जी और कालू मोर जी हमारे सम्मानित 11,000 की माला के साथ देवेंद्र कादियान जी का सम्मान करेंगे।
और साथ में मैं जिन जिन का नाम अनाउंस करता हूं मंच पे आते रहे हमारे सम्मानित जो मेरे को नाम देके गए हैं, वो सम्मानित एक बार मंच पे आ जाए। सुंदर मोर जी और डॉक्टर जीतू मोर, सुनो भूप सिंह जी, जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूं, ये सभी हमारे साथी मंच पर आ जाएं। कृष्ण मोर जी और कालू मोर जी 11,000 के साथ इन्होंने अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाया। हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं सुंदर मोर जी और साथ में डॉक्टर जीतू मोर, सुनो भूप सिंह जी। जीतू मोर, सुनो डॉक्टर भूप सिंह जी ने 11,000 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। हम इनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सुंदर मोर जी 31,000 की माला के साथ अपने भाई का, अपने बेटे का जो मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। अंकल जी साथ में हैं, सुंदर मोर जी हमारे युवा साथी, और साथ में अंकल जी 31,000 की माला के साथ इन्होंने देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। हम इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सभी का, गांव की सारी सरदारी, इस मातृ शक्ति युवा साथियों का एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप इतनी भारी संख्या में अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आए, सभी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अभी अंकल जी ने पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया, इनका भी हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी सबसे पहले देवेंद्र कादन भाई हमारे बीच में अपने विचार रखें, उससे पहले एक बार दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ सभी को नारे लगवाने हैं। और आपके नारों की गूंज पूरे गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जानी चाहिए। सभी को पता लग जाना चाहिए कि अब की बार 36 बिरादरी ने ठान लिया कि गन्नौर के अंदर बेटे को चुनना है। अभी मैं आप सबको से नारे लगवाऊंगा, दोनों हाथ उठाकर आपको पूरे जोश के साथ नारे लगाने हैं और ये गूंज पूरे गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जानी चाहिए। भारत माता की, थोड़ा और जोश दिखाइए, भारत माता की। यही जोश, यही जुनून चाहिए 36 बिरादरी के अंदर, यही प्यार, यही समर्थन चाहिए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों में, हमारी मातृ शक्ति में, युवा साथियों में। यही जोश, यही आपका समर्थन आपके भाई, आपके बेटे की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। और ये पूरे जोश के साथ आपकी सेवा में लग जाते हैं, इस गन्नौर हलके के विकास में लग जाते हैं। आप सबको पता है कि जिस इंसान ने 8.5 सालों तक आपकी सेवा की हो बगैर राजनीतिक पद के, अगर आपके आशीर्वाद से ये आपके भाई, आपके बेटे विधानसभा में जाएंगे तो इस गन्नौर की तस्वीर क्या होगी, क्या हमारी 36 बिरादरी का मान सम्मान होगा, क्या हमारे बच्चों का भविष्य होगा, क्या गन्नौर का स्वास्थ्य क्षेत्र में नाम होगा, क्या गन्नौर का शिक्षा का स्तर कहां तक जाएगा, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 8 सालों से। अभी मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं आप सबसे बोलूंगा, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, दोनों हाथ उठाकर दिल से आवाज निकालनी है और बोलना है हम आपके साथ हैं। और ये गूंज इतनी हो, इस गूंज से आपके बेटे, आपके भाई, इस समाज सेवी को महसूस हो जाए कि सच में ये गन्नौर की जनता, ये गन्नौर हलके विधानसभा की 36 बिरादरी, इस गांव की सारी सरदारी, ये मातृ शक्ति, युवा साथी सब दिल से देवेंद्र कादन जी का समर्थन करते हैं। पूरे जोश से आपको बोलना है, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, थोड़ा और जोश दिखाइए, जोश अब की बार दोगुना हो। देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जोरदार ताली एक बार आपके लिए हो जाए। अभी हमारे बीच में डॉक्टर मनोज जी आए हैं, जो गर्ल्स जैन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनके भी अपने मन के भाव, कुछ विचार हैं, ये भी अपने विचार हम सबके बीच में रखना चाहेंगे। डॉक्टर मनोज जी। आप सभी को नमस्कार। जैसे मंच पर पहुंचा, देखा कि कुछ साथी जाने पहचाने हैं, कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं। आप सभी को आज इस सभा में देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, एक बार मन से और दिल से ये बताइए, इस सभा में आकर क्या अपनेपन का आभास नहीं होता है? होता है क्या?
अगर अपने अपन का आभास होता है तो सभी माताओं से, बहनों से एक बार अनुरोध करूंगा कि हाथ उठाकर बेटे को आशीर्वाद दें। इस बेटे में अपने बच्चे की छवि देखिए। आज हर मां चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बने। चाहते थे ना कि पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन आज इस बेटे ने अपनी मेहनत से इस बात को भी बदल दिया है कि नीयत साफ अगर हो तो आप किसी भी तरीके से बड़े आदमी बन सकते हैं। आज ये देवेंद्र भाई आपके बीच में है, इसकी सामर्थ्य, इसकी शक्ति, इसकी ताकत आज आप सभी ने बनना है। क्या आप चाहते हैं एक गरीब का बेटा गन्नौर का एमएलए बने? चाहते हैं ना? तो चुन लो ना, मौका है आपके पास। क्या ये माएं नहीं चाहती कि इनका अपना जना हुआ, अपनी कोख का आम बच्चा गन्नौर का एमएलए बने? क्या ये छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे नहीं चाहते कि इनका अपना भाई बने, जिसका हाथ पकड़ सके, जिसकी बाजू पकड़ सके, अरे भाग कर जिसकी गाड़ी में चढ़ सके, जिसकी दी हुई हर सुविधा से हम अपने समाज को आगे ले जा सके? क्या ऐसे सामर्थ्यवान भाई को हमें चुन नहीं लेना चाहिए? 8.5 वर्षों से सेवा का यज्ञ चल रहा है, उसमें अकेला मेहनत कर रहा है, आहुति डाल रहा है। आप सभी की आहुति की बारी अब है। जैसे ही आपकी वोट रूपी आहुति पड़ेगी, वो यज्ञ पूरा होगा और गन्नौर को एक नई दिशा मिलेगी। बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग भी, बड़े बड़े मंत्री संतरी भी ये काम नहीं कर पाते जो हमारे इस भाई ने, इस एक आम आदमी ने, इस गरीब के बेटे ने, इस आपके अपने ने जो सुविधाएं यहाँ लोगों को दी है। शिक्षा की मैं अगर बात करूं, मैं एक पढ़ा शिक्षा के क्षेत्र का आदमी हूं। मैं 30 साल से गन्नौर क्षेत्र में विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा में काम कर रहा हूं, सेवा में काम कर रहा हूं। मेरे 30 वर्ष एक तरफ और इस नायक के 8 वर्ष एक तरफ। और इस मंच से मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हाँ, मैं देवेंद्र कादयान का समर्थक हूं। मुझे गर्व है इस बात की कि मैं इस भाई के लिए, इस बेटे के लिए यहाँ पर आता हूँ और ये मंच साझा करता हूँ। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत अगर आप अपने हर बच्चे को देना चाहते हैं तो उसके लिए एक शानदार रास्ता चुनना होगा। और वो नया रास्ता, वो शानदार रास्ता जो है, वो देवेंद्र भाई के हाथों से, देवेंद्र भाई के माध्यम से मिलेगा। आने वाला समय देवेंद्र का समय है, आने वाला समय माताओं बहनों आपका समय है, आने वाला समय आपके बच्चों का समय है, युवाओं आपका समय है। गर्व से कहना, शान से कहना कि हम गन्नौर के एमएलए हैं और हमारा भाई गन्नौर का एमएलए है। ऐसी मिसाल पेश करो कि भविष्य में राजनेता बनने के लिए, भविष्य में एमएलए बनने के लिए किसी बड़े घर में पैदा होने का सपना ना देखना पड़े। आज हर एक आम बच्चा सोचता है, काश मैं फला मंत्री का, फला नेता का बेटा होता तो मैं भी चुनाव लड़ सकता। अरे नहीं भाई, अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप में सेवा का जज्बा है तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। और साबित कर दो, दिखा दो इस गन्नौर को, इस भारत को कि हाँ, आम बच्चा भी चुनाव लड़ सकता है, आम बच्चा भी एमएलए बन सकता है। क्या हम चाहते हैं कि इस भाई को एमएलए बनाए? चाहते हैं तो मेरे साथ बोलो, देवेंद्र भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मौसम थोड़ा हल्का है, अनुरोध करूंगा देवेंद्र भाई से आशीर्वाद लें सबका। हम सबको एक जयकारा लगाना है। मुट्ठी बीच के मैं बोलूंगा, जय दादा खेड़े की, आपने जय बोली। जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। धन्यवाद। खराब मौसम है, लेकिन हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें पिछले 2 घंटे से, पिछले 1.5 घंटे से ना बारिश की परवाह, ना धार डोकरी की परवाह, ना रोटियां की परवाह, लेकिन अपने बेटे को, अपने भाई को उसके सिर पे हाथ रखने के लिए पिछले 1.5-2 घंटे से इंतजार में बैठी है। ऐसी मातृशक्ति को मैं सिर झुकाकर नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं।
गांव लड़सोली के मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से आभार। भाई एक जयकारा अब बच्चे, एक जयकारा और लगाना है जोर से, और नीचे से सिफारिश आई है इस जयकारे की आवाज चंडीगढ़ तक जानी। बाबा कलीनाथ की होगी कसर पूरी। जयकारे का रोड़ा कोना था, चंडीगढ़ तक आवाज का रोड़ा था। तो सभी मेरे सम्मानीय है, खराब मौसम के वजह से थोड़ा जल्दी अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये जो मंच सजा है, ये जो बड़ा सा टीवी लगा है, ये दर्शाता है आपके भाई और बेटे की भावना। किस तरीके का आपका बेटा है, क्या उसके विचार हैं, क्या सोच है, ये सारी चीजें न केवल टीवी में, न केवल इस मंच से, पिछले 8.5 साल से आपने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना है। 8.5 साल पहले आपके बीच में एक नारा लेके आया था, 3 शब्द का नारा, नेता नहीं बेटा। मैंने कहा था नेता नहीं बेटा। ये नारा और इसका मतलब ये है कि नेताओं को आपने बार बार मौके दिए। ये हमारे काका, ताऊ, दादा सारे बैठे हैं, किसी ने 8 बार, किसी ने 10 बार, किसी ने 9 बार, 8-8, 10-10 बार वोट डाल चुके हैं। सभी नेताओं को वोट डाल चुके हैं, लेकिन पहली बार एक गरीब किसान का बेटा, आपके बीच में, जिसने 8.5 साल बिना कोई चुनाव लड़े, बिना एमएलए बने, बिना सरपंच बने, आप लोगों की सेवा की, गरीब लोगों की सेवा की। जो लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, नरम वर्ग से आते हैं, ऐसे लोगों की मदद करने का काम किया है। और इस 8.5 साल के समय में मैंने अपनी सोच को, अपने भाव, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आप तक पहुंचाया है कि मैं कैसे सोच का इंसान हूं, कैसे सोच का व्यक्ति हूं। इसलिए ये जो चुनाव है, ये नेता और बेटे के बीच में है। एक गरीब किसान का बेटा है, दूसरी तरफ है नेता जिसके पिताजी 4 बार 5 बार बड़े बड़े पद पे रहे, मंत्री, एमपी, और वो स्वयं भी सीएम की कुर्सी के बराबर पद पे आप लोगों ने इस कन्नौर हल्के ने बिठाया। 10 साल आपने मौका दिया, और ये 5 मिलाने तो 15 साल से आपके बीच में है। लेकिन उनके 10 साल का काम आपने देखा। यहां घामराम बैठा है, सारे सम्मानित बैठे हैं। उस नेता ने पूरे गांव में सिर्फ 1 परिवार, 2 परिवार, उससे ज्यादा परिवारों का कोई काम नहीं किया। उन्हीं के घर में आना जाना, उन्हीं के घर में अड्डा बनाना, उन्हीं को फायदा पहुंचाना, उन्हीं के घर में नौकरी, उन्हीं से वास्ता रखना। बाकी 36 बरादरी गई भाड़ में, केवल वोट लेने का काम किया, किसी का कोई काम नहीं किया। यदि मैंने कुछ गलत कहा हो, उसने पिछले 15 साल में केवल गांव के वो 1, 2 या 3 परिवार ही नजर आते हैं। यदि किसी को कोई जानता है, पहचानता हो तो बता दो। और गरीब वर्ग जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, रविदास समाज के हैं, धाड़क समाज के हैं, उनके घर का तो पानी भी नहीं पी लिया आज तक, पानी भी नहीं पिए। तो उस नेता की परिभाषा मैंने बताई।
और उसके सामने इस चुनाव में आपका वो बेटा जिसने एक छोटे गरीब किसान परिवार में जन्म लेकर, जिसने गरीबी से लड़ाई लड़ी, नीचे फुटपाथ पे बैठ के सब्जी बेची, छोटी छोटी दुकानें करी, हर काम का, छोटे काम का अनुभव लेके, उसकी पीड़ा का अनुभव लेके आपके सामने कभी छोटा ढाबा, फिर मंदिर ढाबा, ये सारी चीजें आपके सामने हुई है। मेरे कहने का मतलब, एक बेरोजगार युवा की क्या पीड़ा है, किसान की क्या पीड़ा है, एक गरीब परिवार की क्या पीड़ा है, वो दर्द खुद में से महसूस करके आया हूं। इसलिए मैंने कहा बेटा, और उसको नेता इसलिए कहा, केवल वोट लेके जाता है। कोई परिवार ऐसा हाथ उठा के बता दो, आज तक किसी परिवार की 100 रुपए की भी मदद करी हो? 100 रुपए की भी मदद नहीं करी। कभी ऐसा मौका सद जाए, कई बार ऐसा मौका सद जाए कि भाई गांव में कोई शादी है और नेता जा और कन्यादान डालने की बात हो, तो 100 रुपए भी जुड़ सा भाई के लिए चल रहे उससे भी डलवाओ, वो भी अपने नाम में डाल। वो 100 रुपए का नोट भी जुड़ सा गेले चल रहे उससे भी गलवाओ है। और ये हमारे ताऊ और दादा बैठे बीएसटी कॉलोनी में, उससे कार्यालय अभी 5 साल की तो मैं कहता नहीं, लेकिन 10 साल जब वो सरकार में था, इन हमारे ताऊ दादा और पे पैर दबाया करता, इन बुढ़ा पे पैर दबाता था। अपनी उम्र से 10 साल 15 साल उम्र के, ज्यादा उम्र के हमारे बुजुर्गों से पैर दबाता था। ना दबाता तो ये मना कर देंगे, भाई छोरे झूठ बोले, पूछ लो। इन बुढ़ा पे पांव दबाया करता, ईब छोड़ दिए 5 साल जब तुमने पिछली बार उसका इलाज करे ना, पिछली बार वो उड़ा छोड़ा है पानी पर टोल टैक्स पे करना छोड़ गाना था, कसर रहेगी। इनके ने करड़े हो जाइयो। पिछली बार लगभग 11,000 वोटा का सगन गालिया था, इनके ने बंदू का है क्या नजर का गालोगे जब पेंडा छोड़ूंगा। इसलिए ये चुनाव नेता और बेटा के बीच में है, और इन माताओं को ये सोचना है कि एमएलए बनने के लिए मंत्री की कोख में, मंत्री के घर में उस माँ की कोख से जन्म लेना जरूरी है कि किसान की माँ की कोख भी जन्म दे सकती है एमएलए को। इस बात का सोच लेना। और भाई एक बात का फैसला, चलो आज मेरे नाम के बारिश में थोड़े बीज लो। एक बात का फैसला कि भाई मेरे को भी जन्म लेने का अधिकार है, मेरे घर को